व्यूअर्स। नमस्कार दर्शकों, मैं शीबा शेख और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आपका स्वागत है देश प्रदेश की खबरों में। आइए देखते हैं हेडलाइंस। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया कन्या केलावनी महोत्सव का उद्घाटन। आरएसएस चाहता है मनुस्मृति आधिकारिक व्यवस्था, बोले जयराम रमेश। ढाका में दुर्गा मंदिर तोड़ने का विरोध। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया कन्या केलावनी महोत्सव का उद्घाटन। गुजरात के गांधीनगर में शिक्षा को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल देखने को मिली। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कन्या केलावनी महोत्सव और स्कूल प्रवेश उत्सव 2025 में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बालिकाओं की शिक्षा को सशक्त समाज की नींव बताते हुए कहा कि शिक्षा ही विकास का सबसे मजबूत आधार है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर बच्चे को स्कूल तक पहुंचाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कही नवप्रवेशी बच्चों को स्कूल बैग और किट भी भेंट किए। साथ ही अभिभावकों से अपील की कि वे बेटियों की शिक्षा में कोई कमी न आने दें। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। आरएसएस चाहता है मनुस्मृति आधिकारिक व्यवस्था, बोले जयराम रमेश। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी स्थापना से ही भारतीय संविधान पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि आरएसएस ने कभी संविधान को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है और यहाँ तक कहा कि ये संविधान मनुस्मृति से प्रेरित नहीं है, इसीलिए इसी की आलोचना की गई। जयराम रमेश ने भाजपा के 2024 के लोकसभा चुनाव अभियान के नारे 400 पार को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस नारों के पीछे असली मंशा संविधान को बदलने की थी। secular words in the preamble of our constitution, and so do the son of faith minister just said in his press conference. Some people take the constitution copy in their hand, but intent is different from inside, and they have not apologized for what they have done in the past in 1975, and so do the RSS leader is talking about the from November 30th 1949 the RSS has attacked this constitution of India that was made by the Constituent Assembly, the chief architect of which was Dr. Ambedkar and Jawaharlal Nehru, Sardar Patel, Rajendra Prasad. So many other members of the Constituent Assembly were involved in the drafting of the constitution. The RSS never accepted this constitution of India and its foundational pillars of social justice, economic justice, political justice, saying that this constitution did not derive inspiration from the ideals of Manu. It was not based on Manu's Smriti. They assaulted the constitution at every step. And they have 2024 Prime Minister's election slogan was 400 par, ab ki bar. Why? So that they could they could change the constitution. And Prime Minister's close advisors, MPs, economic advisors were calling for a new constitution. Now, as far as what the RSS leader has said yesterday, I would just make a request to him. Just take few minutes, take the trouble of reading this judgment of the Supreme Court given by the Chief Justice, the then Chief Justice, Sanjeev Khanna, on the 25th of November 2024. It's not even a year old. It's only 7 months ago that the Supreme Court, on this very issue, which the RSS leader is raising, has given a judgment. Please read this judgment and then make all sorts of make these statements. So this is completely goes against the basic structure. It goes against the Supreme Court has dealt with the history of what happened in the preamble, what happened to the 42nd Amendment, how the 44th Amendment came. 44th Amendment undid the 42nd Amendment, and 44th Amendment was brought in by Morarji Desai when he was Prime Minister. It was supported by Srimati Indira Gandhi. As she was not a Prime Minister. By then she had become a member of Parliament. She had been elected from Chikmagalur in December 78. So all this has been dealt with very beautifully. 7-page. Normally, Supreme Court judgments are very long, but this is a 7-page judgment, very pointedly. Justice Khanna, 2 judge bench, Justice Khanna, Sanjeev Khanna, Chief Justice, and Justice Sanjay Kumar, have given this judgment, saying how secularism and socialism
are part of the basic structure of the Constitution. So I request Mr. Hosabale to take the trouble to read the Supreme Court judgment. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ढाका में दुर्गा मंदिर तोड़ने का विरोध। बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों ने आज एकजुट होकर दुर्गा पूजा मंदिर को तोड़ने जाने के खिलाफ आवाज उठाई। शहबाग इलाके में बड़ी संख्या में लोग एक मानव श्रृंखला बनाकर इकट्ठा कर विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मंदिर को तोड़कर उनके धार्मिक अधिकारों और सांस्कृतिक विरासत पर हमला है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि ऐसी घटनाओं को रोका जाए और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कुमार विश्वास ने डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को याद किया। कवि और साहित्यकार कुमार विश्वास ने डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान बताने वाले व्यक्ति के रूप में याद किया। कुमार विश्वास ने कहा कि डॉक्टर दुबे ने 30 से 40 साल पहले जब छत्तीसगढ़ राज्य बनने की प्रक्रिया चल रही थी, तब से ही यहाँ की भाषा, संस्कृति और राजस्व को मजबूती से अभिव्यक्त किया गया। उन्होंने पहली बार 1951 में डॉक्टर दुबे से मुलाकात की और कुमार विश्वास के अनुसार दुबे जी दुर्ग के एक छोटे से शहर से निकलकर छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय कलाकार बनने और वे राजनेता की खुलकर स्वास्थ्य आलोचना करते थे, जो उनकी विशेषता थी। 40 वर्षों में देश में और विश्व में छत्तीसगढ़ी भाषा, संस्कृति और इस राज्य का राज्य बोध, इसके प्रभाव में आने से पहले भी अगर कोई एक कलाकार बड़ी शक्तिमत्ता के साथ, बड़ी प्रतिभा के साथ, बड़ी उन्मुक्तता के साथ रख रहा था तो वो डॉक्टर सुरेंद्र दुबे थे। मेरा उनसे परिचय और 1991 का है, जब उन्होंने पहली बार हमारी मुलाकात एक कार्यक्रम में हुई। अब इतना लगभग 35 वर्ष का आसपास का समय हो गया। मैंने उसमें पूरा समय देखा कैसे बेमेतरा के एक छोटी सी जगह से वो दुर्ग आए और दुर्ग से रायपुर आए। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा बनाई और हम सब के लिए, तो क्योंकि परसों ही मेरी बात हुई थी उनके स्वास्थ्य के विषय में, मैंने आशु से पूछा था, उसने कहा चाचा सब ठीक है, 2-3 दिन में छुट्टी मिल जाएगी। उसके बाद हम सब के लिए बहुत ही हृदय विदारक है और हम अभी भी छत्तीसगढ़ बिना सुरेंद्र दुबे के महसूस नहीं कर पा रहे, क्योंकि देश का कोई बड़े से बड़ा कवि हो, चाहे, चलिए मैं तो इतना नाम मेरा नहीं है, कोई भी देश का बड़ा कवि हो, छत्तीसगढ़ के किसी भी मंच पर उसकी आभा, उसकी तालियां, उसकी स्वीकार्यता सुरेंद्र दुबे से नीचे ही रहती थी। सर, आपने भी बहुत बार स्टेज शेयर किया और ये भी देखा, हम लोगों ने भी देखा कि वो चाहे रूलिंग पार्टी के लोग हों या अपोजिशन को, वो अच्छे क्रिटिक भी रहे हैं। देखिए, कवि तो वैसे भी स्वस्थ आलोचक होता है और सबसे अच्छी बात है कि जिस दल के प्रति बाद में उनकी राजनीतिक विचारधारा सेवानिवृत्ति के बाद जुड़ी, उस दल के प्रति भी, उस दल के समस्त बड़े लोगों के सामने खड़े होकर वो अपनी बात कहते थे और ये राजनेताओं की भी महत्ता है कि वो उसे स्वीकार करते थे। और मैं तो, मुझे पिछली सरकार की भी याद है, कांग्रेस सरकार के समय में भी हमारे मित्र जो उस समय मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल जी, उनके सामने भी उन्होंने ऐसी बात कही और उन्होंने भी कभी भी इन बातों को नोटिस नहीं लिया। मेरी इस बात पर चर्चा भूपेश भाई से लगातार होती थी कि भाई उनकी प्रतिबद्धता उस विचारिकी के प्रति है, लेकिन कभी नहीं किया। लेकिन सुरेंद्र दुबे जी का जाना छत्तीसगढ़ समाज के लिए एक बहुत बड़ी हानि है। मैंने उन्हें अमेरिका में, दुबई में, शारजाह में, लंदन में अपने साथ देखा। एक छोटे से हॉल में जहां 2000 अप्रवासी भारतीय हैं, उनमें हो सकता है छत्तीसगढ़ के लोग 10-15 हों, लेकिन वो अपना जो आधा पौन घंटा लेते थे, उस आधा पौन घंटे में आधे से अधिक समय छत्तीसगढ़ के बारे में, अपने खान पान के बारे में, अपनी भाषा के बारे में। बहुत बड़ा नुकसान है हम लोगों के लिए और हमें इससे उभरने में और छत्तीसगढ़ को उभरने में समय लगेगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में नरेला बस डिपो का उद्घाटन। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नरेला में नए बस डिपो का उद्घाटन किया और 100 देवी इलेक्ट्रॉनिक बसों को सार्वजनिक सेवा में समर्पित किया। ये बसें 9 प्रमुख रूटों पर सेवा देगी और यात्रियों को बेहद सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। सीएम ने बताया कि ये डिपो मात्र 3 महीने में तैयार हुआ है, जो दिल्ली की परिवहन व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उनका कहना है कि दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को इलेक्ट्रॉनिक मोड में बदलना और यात्रियों को कम से कम असुविधा देना सरकार की मुख्य लक्ष्य है। उन्होंने कहा, धीरे धीरे हम परिवर्तन व्यवस्था को बेहतर बना रहे हैं। दिल्ली एक जीवित शहर है और विभिन्न रंगों की बसें इसमें रंग भरती है, इसीलिए हमें प्रयोग के तौर पर हरे रंग की, नारंगी रंग की इलेक्ट्रॉनिक बस से शुरू की है। टाइम व्हीकल ट्रैकिंग है और साथ में इन बसों को डिफरेंटली एबल्ड जो हमारे साथी हैं उनके लिए फ्रेंडली बनाया गया है, यानी कि वो इसका सदुपयोग
कर सकते हैं। हमारी महिला साथी ड्राइवर मधु जी इस बस का नेतृत्व कर रही हैं, इस बस की साथी हैं और इसे अब दिल्ली की जनता की सेवा के लिए समर्पित कर रही हैं। हमारी अगली बस जो अब मंच की ओर बढ़ी चली आ रही है, 9 मीटर की बहुत ही शानदार। आज यहाँ नरेला बस टर्मिनल की भी शुरुआत हुई है और 100 हमने इलेक्ट्रिक बसेस देवी भी इस क्षेत्र को समर्पित की है। एक बहुत ही आधुनिक बस डिपो यहाँ पे बना है जिसमें 9 रूट्स की बसेस चलेंगी। लगभग 75 बसेस यहाँ से रूट अपना ऑर्गेनाइज करेंगी और बहुत बेहतरीन सुविधाओं के साथ। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस ने आरएसएस सरकार्यवाह के बयान पर कड़ा पलटवार किया। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोल के बयान पर कांग्रेस नेता संदीप ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। संदीप दीक्षित ने कहा कि आरएसएस के पास हमेशा आधी से कम की जानकारी होती है। उन्होंने याद दिलाया कि आरएसएस के नेता पहले देश में विद्रोह करके प्रधानमंत्री के आवास घेरने और सरकार को काम न करने देने की बात करते थे। दीक्षित ने सवाल उठाया कि आरएसएस ने आपातकाल का स्वागत क्यों किया था, जबकि बाला साहेब देवत्र ने उन्हें फैसले की सराहना की थी। उन्होंने कहा कि जब 1977 में जनता पार्टी सत्ता में आई थी तब भी 72वें संविधान संशोधन में धर्मनिरपेक्ष शब्दों को बदलने के अवसर थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। संदीप दीक्षित ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत कोई भी सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म या किसी अन्याय आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। देखो, ये आरएसएस की यही है, इनको आधी से कम जानकारी होती है और इधर उधर की बात करने की पुरानी आदत है। इमरजेंसी के समय जो स्थिति थी इस देश में, उसकी क्यों नहीं बात करते? जब जिन दलों के साथ ये कहते थे, उन्होंने सामने सीधे सीधे आकर कहने लगे थे कि बगावत हो जाए इस देश के खिलाफ, हम प्रधानमंत्री का घर घेर लेंगे, सरकारें नहीं चलने देंगे। आपने जोर जबरदस्ती से गुजरात की सरकार गिराई, आप जोर जबरदस्ती से पटना में सरकारें गिराना चाहते, तो वो छोड़िए। और ये वही बता दें फिर कि फिर आरएसएस ने स्वागत क्यों किया इमरजेंसी का। भाई, खबर तो ये कि बाला साहब देवरस ने लिखा भी प्रधानमंत्री को उस बात की तारीफ करते हुए, इनके तमाम नेताओं ने उसकी तारीफ की। तो ये छोड़िए, संघ कभी कुछ भी बोल देता है, उसको कोई महत्वपूर्ण बात नहीं लेनी चाहिए। जहां तक सेकुलर शब्द की बात है, पहले तो मैं यही जानना चाहता हूं कि 77 में जब जनता पार्टी की सरकार आई थी तो जनसंघ जनता पार्टी के हिस्से में था। 42वां संशोधन जो हुआ था उसकी कई चीजें उन्होंने चेंज की, तो उसमें सेकुलर वर्ड आप चेंज कर देते। आपकी तो सरकार थी, क्यों नहीं चेंज किया आपने? और एक और चीज है, ये नासमझी की इतनी दिक्कत होती है संघ में। सेकुलर शब्द प्रियम्बल आने से हमारा संविधान सेकुलर नहीं बना। आप आर्टिकल 15 लीजिए, आप इक्वालिटी के आर्टिकल लीजिए, जिसमें साफ साफ कहा जाता है कि इस देश की सरकारें, इस देश की कानून और न्यायिक व्यवस्था धर्म के आधार पर या किसी और आधार पर किसी भी व्यक्ति के बीच में कोई भी द्वेष नहीं करेगी, किसी भी तरीके से उनको अलग ट्रीट नहीं करेगी। जब पूरी सारी के सारे धर्म को इक्वली ट्रीट किया जाता है और धर्म से नहीं, कानून से, न्याय से और आस्थाओं के साथ अगर देश चलेगा, तो ये एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा होती है। जो सेकुलर वर्ड प्रियम्बल में आने के पहले भी इस हमारे संविधान की भाषा थी। अब इनको अगर सेकुलरिज्म का मतलब ही नहीं समझ में आता है कि कहाँ किस किस प्रावधान में पहले से ही सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन था, ये समझ में नहीं आता, तो फिर क्या कोई आरएसएस को कुछ कह सकता? आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। अहमदाबाद रथ यात्रा में बेकाबू हुए 3 हाथी। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा के दौरान एक अप्रिय घटना सामने आई है, जब यात्रा में शामिल 3 हाथी अचानक बेकाबू हो गए। घटना के वक्त रथ यात्रा बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी के बीच आगे बढ़ रही थी। अचानक हाथियों के बेकाबू होते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और कुछ समय के लिए भगदड़ जैसे हालात बन गए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिकल सेल एनीमिया पर बोली CSIR प्रमुख कलाई सेल्वी। CSIR की महानिर्देशक N कलाई सेल्वी ने सिकल सेल एनीमिया को लेकर चल रहे मिशन भारत के सबसे दूरदर्शी और सफल अभियानों में से एक बताया है। उन्होंने कहा कि ये मिशन 8 साल पहले शुरू किया गया था, जब देश में सिकल सेल एनीमिया पर सार्वजनिक चर्चा तक नहीं होती थी, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर इस बीमारी को लेकर गंभीर बातचीत केवल 3 साल पहले शुरू हुई। You have just mentioned sickle cell anemia. The subject is very close to Prime Minister's vision. Yeah. So what is the progress about this plan? Sickle cell anemia is actually one of our very visionary and a successful mission, I would say. 8 years back we started.
because country started talking about sickle cell anemia mission just 3 years back. But CSIR started it 8 years back, thanks to MOTA, Ministry of Tribal Affairs. So they only initially gave the funding for first 5 to 6 years. They gave the funding, and we divided it into 3. First one is screening and surveillance of sickle cell anemia. This was done by CCMB Hyderabad. Second one is drugs and medicines that could be utilized for sickle cell anemia. This was headed by IICT. And the third one is genome sequencing and genome editing. This was headed by IGIB. So in the first case, if you just see the screening and the surveillance, we had a great success story, I would say. Raipur, Bilaspur, everywhere our team, especially which was headed by Dr. Giriraj Chandak, he actually sacrificed his life almost for the sickle cell anemia mission. So he used to travel along with the set of research scholars and the project students team. He used to visit all the places, Odisha, Chhattisgarh, all these belts. So they will go talk to the tribal community. Even they started even giving counseling, pre-marriage counseling, post-marriage counseling, even pre-pregnancy counseling, then during the course of pregnancy counseling, even after the childbirth counseling. So like that, no, they made a very big and a great role. Now, after spending 5 to 6 years, we realized that we have a great potential of coming up with a kind of a detection kit, sickle cell anemia detection kit. And it has been developed by the same group, Giriraj Chandak's group. Now he has come up with a kind of a PCR, which is a molecular diagnosis kit. It is going to cost even less than 100 rupees. And you need not depend upon HPLC kind of a sophisticated instruments from now onwards. With a 1 drop of dry blood, you can very easily understand whether you have any kind of a threat for sickle cell anemia, whether you are a carrier or you are a patient, or what is the severity of your sickle cell anemia. All these indications you can get. So now he has started his own startup, and we have asked him to get his company onboarded in GEM portal so that it will reach the market as well as the society through the visibility. So this is how we are working in sickle cell anemia. We have already completed 20 lakh screening from CSIR itself. This is our success, I would say. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आर.डी. बर्मन की जयंती पर आशा भोसले भावुक। मुंबई में आज महान संगीतकार आर.डी. बर्मन की जयंती पर उन्हें याद करते हुए गायिका आशा भोसले भावुक हो गई। उन्होंने संगीत के उस सुनहरे दौर को याद किया जिसमें उन्होंने बर्मन दा के साथ काम किया। आशा भोसले ने कहा, इतने साल बीत गए, मैंने पहले उनके पिता एस.डी. बर्मन जी के साथ काम किया, फिर पंचम के साथ भी काम किया, हमें मिलाकर कई बेहतरीन गाने भी गाए। उन्होंने आगे कहा कि आज उनका जन्मदिन है, लेकिन वे अब हमारे बीच नहीं है। ये बहुत दुख है, हमें उनकी बहुत याद आती है। ऐसे बोलूं मैं, कितने साल हो गए, मतलब 9-2-11 में वो असिस्टेंट थे, तब से मैं गा रही हूँ उनके पिताजी के साथ, फिर उनके साथ। बहुत चीज़ें हैं, बहुत हमने गाने अच्छे किए हैं, अच्छा मतलब कठिन भी गाने थे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर प्रशासन में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है। गंगरेबल जिले में बालाटाल बेस कैंप के आईजीपी कमिश्नर बीवे बिरंदगी ने सुरक्षा इंतजामों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ट्रकों, बाला ट्रेन और पहलगाम पर विस्तृत और उच्च सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं ताकि श्रद्धालु बिना किसी रुकावट की यात्रा पूरी कर सके। बीके बिरंदगी ने बताया कि पलटाल एक्सिस पर सुरक्षा को लेकर कई स्तरों पर प्रबंध किए गए हैं, जिसमें से निगरानी, पेट्रोलियम और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखा गया है। देखिए, दोनों ट्रैक्स जो हैं उसको बराबरी की जो सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। जैसा आपने बोला कि दोनों ट्रैक्स की एक अपनी अहमियत और महत्ता है, तो उसके लिहाज से बाल्टल कैंप भी जो है, बाल्टल एक्सिस है, वो भी उसी प्रकार से हम लोगों ने उसके जो विस्तृत सुरक्षा इंतजाम करे हैं काफ़ी डेप्थ में, ताकि आने वाले जो श्रद्धालु हैं, यात्री हैं, उस एक्सिस से भी जाते हैं तो भी उनकी जो यात्रा है सुगम, सरल एवं सुरक्षामय हो। देखिए, उसके रिलेटेड जो है अपने जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स हैं जो उनको डील करते हैं, उनकी जो दिशा निर्देश है वो उनको कन्वे कर दिए गए हैं
और बाकी चीज़ जो आपकी जरिए मैं बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यात्री जो मेन कॉन्वॉयज होते हैं उसी के साथ संलग्न होके आएँ ताकि वो अपनी यात्रा जो है सरल एवं सुगम तरीके से कर सकें। इसके अलावा एक हमारा जो ट्रैफिक विंग है वो सही समय पे जो है ट्रैफिक एडवाइजरीज भी जारी करेगा, जो कि ट्रैफिक एडवाइजरीज कुछ कट ऑफ टाइमिंग से रिलेटेड होते हैं ताकि यात्री जो आ रहे हैं, जो हाईवे पे चल रहे हैं व्हीकल्स, और वो उनकी एक कट ऑफ टाइमिंग मुहैया की जाती है ताकि वो उसी टाइम जो विंडो में है अपना जो ट्रैवल करें। तो लिहाजा मेरी आपकी वसादत से दरखास्त रहेगी लोगों से, यात्रियों से, जब भी इस तरफ यात्रा के लिए आएंगे तो वो ट्रैफिक एडवाइजरीज को जरूर देखें ताकि उनको किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। बिल्कुल, ये पूरे जो यात्रा से रिलेटेड है जो कि दोनों रूट्स को कवर करती है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय कोयला मंत्री ने पूर्व खनन मंत्रियों के साथ सम्मेलन में भाग लिया। असम की राजधानी गुवाहाटी में दूसरे पूर्वोत्तर खनन मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने भाग लिया। मंत्री ने कहा कि खनन और कोयला मंत्रालय के नेतृत्व में ये सम्मेलन पूर्वोत्तर राज्य के खनन क्षेत्रों को और मजबूत बनाने के लिए आयोजित किया गया है। उनका उद्देश्य इस क्षेत्र को प्रोत्साहित करना और विकास के नए आयाम खोलना है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम पूर्वोत्तर के अष्टलक्ष्मी राज्यों को और सशक्त बनाना चाहते हैं। पिछले 11 वर्षों में पूर्वोत्तर के बुनियादी ढांचे का विकास बहुत तेजी से हुआ है। आफ्टर लॉन्ग टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माइनिंग मिनिस्ट्री के तरफ से और कोल मिनिस्ट्री के तरफ से ए सेकंड नॉर्थ ईस्ट माइनिंग मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव 2 दिन के लिए 27th ऑफ दिस मंथ एंड 28th 2 डेज का मीटिंग हम शुरू किया है और इसमें इस 8 स्टेट से माइनिंग सेक्टर्स के पूरे अधिकारीगण सभी लोग आज इस कार्यक्रम में भाग ले रहे। हम नॉर्थ ईस्ट में स्टेट्स को माइनिंग सेक्टर में और एंकरेजमेंट देना चाहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस अष्टलक्ष्मी स्टेट्स को और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। लास्ट 11 years अंडर लीडरशिप ऑफ दी श्री नरेंद्र मोदी जी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी में नॉर्थ ईस्ट को बड़ा बूस्ट मिला है। लगभग 700 टाइम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट में विजिट किया है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आल्सो मोर देन 60 टाइम्स नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में टूर किया है। ऐसी आज माइनिंग सेक्टर में आने वाले दिन में स्टेट और लोकल कम्युनिटी इन्वॉल्व करते हुए, लोकल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करते हुए, लोकल एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, लोकल माइनिंग सेक्टर में पोटेंशियल को टैप करना, उसके लिए प्रॉपर एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़, माइनिंग एक्टिविटीज़ को एंकरेजमेंट करने के लिए भारत सरकार प्रयास करे। इन दिस एक्टिविटी में और आगे विकास के लिए फॉरवर्ड होने के लिए इस 2 दिन का कॉन्फ्रेंस हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत उपयोग होगा। इस दृष्टिकोण से इस 2 दिन का कॉन्फ्रेंस हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। धन्यवाद। इलीगल माइनिंग, रेड हॉल माइनिंग में यहाँ पे देखा गया है कि बहुत सारा पेपर हुआ। भी मैं जिस इलीगल माइनिंग एक्टिविटी पे वो स्टेट गवर्नमेंट्स का बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। जो असम का लास्ट इंसिडेंट्स के बाद असम गवर्नमेंट हैज टेकन डिसीजन, टोटल जितने भी इलीगल माइनिंग है असम में पूरा बंद किया है। वैसे ही अलग अलग स्टेट्स में है। स्टेट गवर्नमेंट्स लोकल कम्युनिटी को बातचीत करते हुए 100% इलीगल माइनिंग बंद करना, इसके कारण एक्सीडेंट्स हो रहे, इनोसेंट पीपल इसमें जान दे रहे। इसलिए मैं सभी स्टेट गवर्नमेंट से भी बातचीत कर रहे। नॉट ओनली नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, देश भर में जिधर भी इलीगल माइनिंग होना नहीं चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट का जो 2014 का डायरेक्शन के बाद
भारत सरकार अंडर लीडरशिप ऑफ दी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, दिस टोटल माइनिंग सेक्टर ऑक्शन रिजीम में आया है। इसका ऑक्शन रिजीम आने के कारण टोटल ट्रांसपेरेंसी के द्वारा हर मेजर मिनरल हो, माइनर मिनरल हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, सभी ट्रांसपेरेंसी के द्वारा ऑक्शन के द्वारा ही इस माइनिंग ब्लास्ट एलोकेशन हो रहे। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दिया है, जिस मिनरल्स इज ए नेशनल प्रॉपर्टी है, इसीलिए प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के साथ इस माइनिंग सेक्टर में, कोल सेक्टर में जो इस ब्लॉक्स को ऑक्शन होना चाहिए, ऑक्शन के द्वारा ही इस माइनिंग एक्टिविटी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश पर भारत सरकार लगातार इसमें और रिफॉर्म्स करते हुए इस एक्टिविटी को आगे ले जा रहे हैं। असल में सिंडिकेट भी बहुत ज़्यादा है, हर जगह से सिंडिकेट। असम पे भी बहुत जगह से ऐसा होता है, सिंडिकेट चलता है और इलीगल माइनिंग भी होता ही रहता है। गवर्नमेंट भी ये लोकल कम्युनिटी भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल कम्युनिटी भी इसमें थोड़ा सहयोग देना चाहिए। इलीगल माइनिंग बंद करना चाहिए और प्रॉपर ऑल माइनिंग ब्लॉक्स को प्रॉपर एक्शन होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यही बार बार हर स्टेट्स को, देश भर में हर स्टेट्स को यही डायरेक्शन देते हैं और बार बार जो भी इंसिडेंट होता है स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत करते हैं। मैं आज बताना चाहता हूँ, देश में बहुत अभी इलीगल माइनिंग कम हुआ है। अभी जो भी छोटे छोटे जगह हो रहे वो भी कम होना चाहिए। इसमें पूरा स्टेट गवर्नमेंट का सहयोग होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट का हाथ में ही रहते हैं। लैंड ऑर्डर, इलीगल माइनिंग, लैंड ऑर्डर बचाना, इलीगल माइनिंग बंद करना स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। थैंक यू। एमओयू भी क्या है आज क्या है अलग अलग सेक्टर में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का आदेश पर नॉर्थ ईस्ट में हम माइनिंग एक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स का अलग अलग एजेंसीज, एक्सप्लोरेशन एजेंसी हो और पीएसयूज भी हो, नॉर्थ ईस्ट स्टेट से मिलकर काम करना चाहते हैं। जितने भी लैंडस्लाइड एक्टिविटी है उसको रोकना चाहते हैं और इस दृष्टिकोण से हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट से अलग अलग एमओयूज भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार के पीएसयूज के द्वारा, भारत सरकार के जो एक्सप्लोरेशन एजेंसीज के द्वारा आज एमओयू किया है। थैंक यू वेरी मच। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुरी में रथ यात्रा 2025 के लिए सुरक्षा प्रबंध तैयार। पुरी में भव्य जगन्नाथ यात्रा 2025 को लेकर सुरक्षा और आपातकालीन व्यवस्थाओं को लेकर अग्निशम सेवा महानिर्देशक सुधांशु सारंगी ने विस्तृत जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि रथ यात्रा के दौरान किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक प्रावधान और संस्थान उपलब्ध है। इसमें डिफाइंड ब्रिजिलेंट CPR, ऑक्सीजन पैक जैसे जीवन रक्षक उपकरण शामिल है। सुधांशु सारंगी ने कहा कि कुल मिलाकर लगभग 1500,000 कर्मी तैनात किए गए हैं, जिनमें से 430 लाइफ गार्ड समुद्र तट पर सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा 6 त्वरित प्रतिक्रिया दल भर भी स्थिति के लिए तैयार है। We are prepared so far. Events are going smoothly. In case there is any emergency situation, we have made all the provisions to respond to it. And I think things should go well. Some persons are in the stretchers. Yes, I mean that's a yes. If they are unconscious, then there is a problem. We have our team to resuscitate. We have all the required equipment like defibrillators, CPR. We have our people are trained to do CPR. We have oxygen pack. So I think we can, in case of that kind of an emergency. We have had one since morning. So I hope we don't have any more. How many fire service teams are deployed? We have about 1,500 people deployed. We have 430 people deployed on the sea beach as lifeguard. And there are teams deployed here. There are 6 rapid response team to handle people who become unconscious. So they are doing a good job. Then we have people spraying water if it gets hot. And then if water accumulates, then we have 20 high-powered pumps to remove water from the Bodadanda. So a lot of preparations have been made and I think we will do well.
आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का उद्देश्य बैंकों की वित्तीय स्थिति, कर्ज वसूली, नई नीतियों और ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के उपयोगों पर चर्चा करना था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हमने आपातकाल के बाद सार्वजनिक खेद जताया था, बोले अशोक गहलोत। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने सीएम भजनलाल शर्मा के आपातकाल को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी है। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस ने आपातकाल के बाद सत्ता में लौटते ही सार्वजनिक तौर पर उसी समय गलतियों पर खेद जताया था। उन्होंने याद दिलाया कि आपातकाल के दौरान कांग्रेस के कई नेताओं को जेल जाना पड़ा था, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी शामिल थी, जिन्हें चिकमंगलुरु से चुनाव जीतने के बाद जेल भेजा गया था। फर्क इतना ही है, जब इमरजेंसी लगी थी उस वक्त में कई लोग जेल गए थे। इमरजेंसी की जो घटना थी उसको लेके कांग्रेस नेताओं ने, इंदिरा गांधी जब वापस आंधी चली उनकी तो प्रधानमंत्री बनी, तब भी हमने एक पब्लिकली कहा इसमें कई खामियां हुई, कुछ गलतियां हुई है, उसके लिए हमें खेद है। वो चैप्टर क्लोज हो गया। इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? जेल हम भी गए हैं, भजनलाल को नहीं मालूम है। इतना ही फर्क है कि वो गए जेल इमरजेंसी के अंदर गए, तो हम लोग जेल गए जब इंदिरा गांधी को आपने तो चुनाव जीत के आई थी चिकमंगलुरु से, बावजूद उसके आपने पार्लियामेंट से उनको निष्कासित कर दिया और जेल भेज दिया। उनके समर्थन में लाखों लोग जेल गए हैं हिंदुस्तान भर के अंदर। 2000 लोग तो मेरे ख्याल से जोधपुर से गए होंगे, तो वो माहौल अलग था। तो उनको भजनलाल को भी इतने नए हैं ना, वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, पहली बार विधायक बने हैं, नौजवान है, तो अभी उनको कई जानकारी है नहीं, इसलिए ऐसी बातें बोल देते, हमें माइंड नहीं करना चाहिए। वो भजनलाल जी है, भजनलाल जी भजन करने वाले भी होते हैं, क्या है कि उनको तमाम बातों। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संविधान की हत्या हुई, मौलिक अधिकार छीने गए, बोले अर्जुन राम मेघवाल। दिल्ली में आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया आपातकाल लोकतंत्र के लिए एक गंभीर धब्बा था। मेघवाल ने बताया कि उस दौरान संविधान की हत्या हुई, नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए, प्रेस पर सेंसरशिप लागू की गई और विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या आज भी हम उसी दौर में हैं? देखिए, इमरजेंसी जो इंदिरा जी ने लगाई थी वो लोकतंत्र पे काला अध्याय था, एक धब्बा था, इसको सबने माना ही है। लेकिन नई जनरेशन को ये जानकारी होनी चाहिए कि संविधान की हत्या उस समय इंदिरा जी ने कैसे की, जिसको हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, जिसको बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा कि आर्टिकल 32 ये सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है, उस आर्टिकल को भी सस्पेंड कर दिया गया। नागरिकों के मौलिक अधिकार भी समाप्त कर दिए गए, प्रेस पे सेंसरशिप लग गई, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया, कोई इंदिरा जी के खिलाफ बोल नहीं सकता। ऐसा कालखंड है क्या? अभी क्या बात कर रहे हैं ये विपक्ष के लोग? मुझे तो लगता है कि अगर ऐसा कालखंड आपको पसंद है तो वो आपको मुबारक, जनता पसंद नहीं करती। इमरजेंसी जो इंदिरा जी ने लगाई थी, जो सत्ता बचाने के लिए लगाई थी और कोई कारण नहीं था, उनकी कुर्सी खतरे में आ गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आया, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये संसद सदस्य तो रह सकती है लेकिन वोट नहीं दे सकती, इनका चुनाव अवैध घोषित हो गया। तो जब ऐसी परिस्थितियां बनी देश में तो उसका मतलब क्या? कुर्सी खतरे में थी ना, तो कुर्सी को बचाने के लिए इमरजेंसी लगाई।
अगर ऐसा उनको पसंद है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को और राहुल गांधी जी को, तो वो उनको मुबारक। देश पसंद नहीं करता ये चीजें, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने संविधान हत्या दिवस के माध्यम से ये यंगर जनरेशन को समझाने का प्रयास किया कि ऐसा भी कालखंड था जब आप किसी के खिलाफ बोल नहीं सकते। मैं तो राजस्थान से आता हूं, इमरजेंसी का कालखंड देखा। मैं तो उस समय टेलीफोन एक्सचेंज में ऑपरेटर था। संजय गांधी हमारी बीकानेर यात्रा करते हैं। किस पोस्ट पे थे वो जी? बोला एक युवाओं की रैली करनी है। कोई बात नहीं, आ जाओ। लेकिन उसकी अगवानी करने कौन आए? मेरे बीकानेर में राजस्थान के उस समय के मुख्यमंत्री श्री हरदेव जोशी अगवानी करने आए। उनको 2 टेलीफोन क्यों दिए गए? वो किस पद पे थे? उनकी जहां मीटिंग थी वहां 2 टेलीफोन, जहां वो ठहरे थे वहां 2 टेलीफोन। जो प्रधानमंत्री को जो एक अधिकार होता है जाने का भी 2 टेलीफोन उनको मिलेंगे, उनका ऑफिस रहेगा, वो उनको कैसे अधिकार मिला? कौन जिम्मेदार है जी इन चीजों का? ये काला अध्याय है इमरजेंसी। अब वक्त हो चला है दर्शकों छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे सहयोगी श्रद्धा के साथ देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।